Welcome to lecture number 11 of chapter depreciation. और टॉपिक हमारा चल रहा है when provision is maintained, that means when provision for depreciation is maintained, accumulated depreciation is maintained. Let's move to question number 16th. Move to question number 16th. Bansal Construction Limited purchased a machine on 1st October 16 for 6,55,000. On 1st March 17, it purchased another machine for 240. On 1st July 18, it sold the first machine purchased for 524. Accumulated depreciation account is maintained. मतलब provision for depreciation is maintained after charging the depreciation of 10% on original cost straight line method. Accounts are closed on 31st March. Prepare machinery account, accumulated depreciation, that is provision for depreciation account. Also prepare machinery disposal account. 3 साल 17, 18, 19 का अकाउंट बनाना है और मशीनरी डिस्पोजल दैट मीन्स एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाना है. तो 3 अकाउंट्स बनेंगे इसमें, दैट इज मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड एसेट डिस्पोजल अकाउंट और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट. बट सम शुरू करने से पहले सारी कैलकुलेशंस. Bansal Construction Limited purchased a machine on 1st October 16. 1st October 16 हमने प्लांट खरीदा है 6,55,000 का. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% for 6 months. That would be 32,750. और ये वैल्यू आ गई हमारी 1st April 17. 6,222,50. अब डेप्रिसिएशन दोबारा चार्ज करेंगे. 10% फॉर 12 मंथ्स. ओरिजिनल कॉस्ट है तो 6,55,00. 55,6750. ये वैल्यू आ गई हमारे पास 1st अप्रैल 18 की. हमने मशीन बेची कब है? ऑन 1st जुलाई 18. अप्रैल, मई, जून 3 महीने के बाद डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 3 मंथ्स की. अप्रैल, मई, जून 3 मंथ्स की डेप्रिसिएशन. 6,55,000 का 10% फॉर 3 मंथ्स 16,375. और ये वैल्यू आ गई अप्रैल, मई, जून 1st जुलाई 18. ये वो डेट है जिस दिन हमने बेचा. हमने ये मशीनरी बेची 1 जुलाई 18 को, तो वो वैल्यू गिवन है, वो वैल्यू आ गई 543,75. बेचा कब? 1st जुलाई को. कितने की थी? 543,75. कितने में बेचा? 524. हमने सेल किया 5,24,000 में. सो वी हैव अ लॉस. 5,40,375 माइनस 5,24,000, हमें लॉस हुआ है 16,375 का. There is a loss of 16,375.
Moving on, machinery 2. This is machine 1. Machine 2. (16th) right. On 1st March 17, यहीं पे शो हो जाएगा मशीन 2. 1st March 17 हमने मशीन खरीदी है 2,40,000 की, 240. डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे एट द रेट 10% फॉर 1 मंथ, 1 महीने के लिए. 2,40,000 का 10% 1 महीने के लिए 2,000, बचा 238. ये डेट आ गई 1st April 17. नाउ विल चार्ज डेप्रिसिएशन फॉर 12 months. ये मशीन कौन सा बेची है? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है तो 240 पे लगेगा 24,000. 2,14,000 आ गया. कौन सी डेट? 1st April 18. हमें तो 2019 तक बनाना है. माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% फॉर 12 months, 24,000. Left with 190. This is 1st April 19. 2,40,000 minus 48 minus 2, 190. Perfect. But wait, सिर्फ 2 मशीन नहीं है इस क्वेश्चन में. इस क्वेश्चन में 3 मशीन्स हैं. मशीन 3, Bansal Construction Limited purchased a machine on 1st October 16 for 655. All the calculations. On 1st March 17, it purchased another machinery to 240. All the calculation. On 1st July 18, it sold off the first machine for 524. Done. Only 2 machines are there, not 3. Only 2 machines are there. सभी calculations हम show कर चुके हैं. वर्किंग नोट हमारे बन चुके हैं. दिस इज नथिंग बट अ वर्किंग नोट. इसके मार्क्स हैं, ये नहीं भी शो करेंगे तो चलेगा, ये शो करना जरूरी है. नाउ विल स्टार्ट विद मशीनरी अकाउंट. लेट्स मेक मशीनरी अकाउंट. डेट, particulars, amount, date, particulars, amount. First October 16. To bank 655. October, November, December, Jan, Feb, March. 1st March 17 to bank 240. Books close 31st March 17. Buy balance carry down 8,95,000. Yes, 8,95,000. This carry down would be brought down 1st April 17 to balance brought down
8,95,000. It represents two machineries, 1 and 2. April, May, June, July, August, September, October, November, December, Jan, Feb, March. 31st March. By balance carried down 8,95,000. नीदर सोल्ड नॉर परचेज्ड, ना ही इस साल हमने खरीदा है ना ही इस साल बेचा है. मशीनरी रिमेन्स इंटैक्ट. दिस कैरी डाउन वुड बी ब्रॉट डाउन 1st April 18 to balance brought down. अप्रैल, मई, जून, जुलाई. 1 जुलाई को हमने मशीन बेची. 1 जुलाई 18 हमने मशीन बेची. DSP बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बाय बैंक सेल, बाय P&L लॉस. बट हमने एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाना है तो बाय मशीनरी डिस्पोजल या बाय एसेट डिस्पोजल अकाउंट. हाउ मच इज एसेट डिस्पोजल अकाउंट? जो मशीन पहली बेची है 655. मैं इसकी बाइफिकेशन शो कर देता हूं ताकि आपको समझना इजी रहे. DSP प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बैंक सेल, P&L लॉस. आपने लिखना नहीं है, आपको समझाया जा रहा है. P&L लॉस में आ जाएगा 16,375, सेल में आ जाएगा 524, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में आ जाएगा आज तक की सारी डेप्रिसिएशन जो कि है 32,750, 65,500, 16,375. तीनों को ऐड करके ये आ जाएगा. हाउ मच इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन? 32,750, 65,500, 16,375, 114625. मैं बार बार कह रहा हूं आप ये नोट नहीं करेंगे, ये आपको समझाने के लिए है. एसेट डिस्पोजल में डालना है, DSP अलग अलग नहीं डालना क्योंकि एसेट डिस्पोजल अकाउंट पूछा गया है. क्लियर? सो दिस इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, सो वी विल नॉट रिकॉर्ड इट. 31st March 19 buy balance carry down. How much is buy balance carry down? एक ही तो मशीन बची है हमारे पास 240 की. This is machinery account. Now we'll make provision for depreciation account. Make the format. Provision for depreciation account. Date. Particulars, amount, date, particulars, amount. डेप्रिसिएशन चार्ज होगी 31st March 17 को बाय डेप्रिसिएशन. वर्किंग नोट आपके सामने है, आपकी बुक में है, आपकी कॉपी रजिस्टर में है, नोट्स में है. तो डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है हमारी पहली मशीनरी पे 32,750 और दूसरी मशीन पे चार्ज हो रही है 2,000, 34,750. सो जस्ट फॉर योर रेफरेंस 32,750, क्योंकि मैं इस टाइम आपको
वर्किंग नोट नहीं शो कर पा रहा हूँ तो वर्किंग नोट आप अपनी रजिस्टर में देख सकते हैं या फिर मैं ब्रैकेट में शो कर रहा हूँ। दिस इज ऑन फर्स्ट प्लांट, दिस इज ऑन सेकेंड प्लांट और मशीनरी। टू बैलेंस कैरी डाउन, this carry down would be brought down now. अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जन फेब मार्च, 31 मार्च 18 डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। और डेप्रिसिएशन पहले प्लांट पे लग रही है 65,500 और दूसरे प्लांट पे लग रही है 24,000। 65,500 प्लस 24,000 इज 89,500। डेप्रिसिएशन अकाउंट चला जाएगा P&L में, खर्चा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो जाएगा कैरी डाउन। 31 मार्च 18 टू बैलेंस कैरी डाउन 34,750 plus 89,500 124,250। Now this 31st March would be 1st April by balance brought down 124,250। अप्रैल मई जून जुलाई में हमने ये मशीन बेची है, फर्स्ट प्लांट बेचा है तो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगी बाय डेप्रिसिएशन। 3 मंथ्स की डेप्रिसिएशन लगी थी 16,375, 16,375। 31 मार्च 19 पे डेप्रिसिएशन लगेगी सेकंड प्लांट पर जो हमारे पास इस टाइम पड़ा हुआ है, जो लगेगी 24,000। कैरी डाउन करने से पहले भूल मत जाइएगा, जो एसेट बेचा है उसको खत्म करेंगे, जो एसेट बेचा है उसे खत्म करेंगे। अगर एसेट डिस्पोजल मेंटेन हो रहा है तो एसेट डिस्पोजल, मेंटेन नहीं हो रहा तो मशीनरी, मेंटेन हो रहा है तो एसेट डिस्पोजल, नहीं हो रहा तो मशीनरी। वी आर मेंटेनिंग एसेट डिस्पोजल अकाउंट। 2 एसेट डिस्पोजल अकाउंट। आज तक की सारी डेप्रिसिएशन जो लगी थी 32,750 प्लस 65,500 प्लस 16,375। 32,750 plus 65,500 plus 16,375 114625 1,14,625। बाकी टू बैलेंस कैरी डाउन। कैरी डाउन क्या होगा? बैलेंसिंग फिगर दिस प्लस दिस प्लस दिस माइनस दिस, आई रिपीट दिस प्लस दिस प्लस दिस माइनस दिस। और कैरी डाउन क्या होगा? सेकेंड प्लांट पर आज तक की सैलरी डेप्रिसिएशन, सेकेंड प्लांट पर आज तक की सैलरी डेप्रिसिएशन 50,000 आ रहा है। यस और क्योंकि क्वेश्चन में बोला एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाइए तो अब हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे। हियर एसेट डिस्पोजल अकाउंट। डेट का कॉलम नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा क्योंकि ये एक ही दिन बनता है जिस दिन सेल होती है। तो पर्टिकुलर्स अमाउंट, अगर आप डेट का कॉलम बना देंगे तब भी चलेगा, नहीं बनाएंगे तब भी चलेगा क्योंकि मैं डेट लिख रहा हूं यहीं पर 1 जुलाई 18, क्योंकि एक ही दिन बनेगा ना ये अकाउंट। जब बना जब गुड्स बेचे, मतलब जब मशीनरी बेची,
डेट का कॉलम बनाएंगे तब भी फिर 1 जुलाई ही आएगा। मशीनरी में एसेट डिस्पोजल क्रेडिट है, मशीनरी में एसेट डिस्पोजल क्रेडिट है, तो एसेट डिस्पोजल में आ जाएगा टू मशीनरी। मशीनरी में एसेट डिस्पोजल क्रेडिट है तो एसेट डिस्पोजल में आ जाएगा टू मशीनरी। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में एसेट डिस्पोजल डेबिट है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में एसेट डिस्पोजल डेबिट है, तो एसेट डिस्पोजल में आ जाएगा बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। उसके बाद डीएसपी, जैसे आपको पता है डी स्टैंड्स फॉर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डन, एस सेल, कितने की सेल की हमने 5,24,000। P&L लॉस 16,375, आपका एसेट डिस्पोजल अकाउंट मैच करेगा। राइट, और एसेट डिस्पोजल अकाउंट के नीचे नोट लिख देंगे, गिव अ नोट अंडर एसेट डिस्पोजल अकाउंट, asset disposal account is a temporary account which is opened on the day or date when asset is sold or discarded, full stop. This is an optional account, this is an optional account as it is duly closed on the same date. ये एक ऑप्शनल अकाउंट होता है क्योंकि जिस दिन ओपन होता है उसी दिन क्लोज भी हो जाता है। गिविंग यू 1 मिनट, हैव अ फोकस ऑन मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड एसेट डिस्पोजल अकाउंट, तीनों पे ध्यान दीजिए फॉर 1 मिनट। राइट, दिस इज हाउ एसेट डिस्पोजल अकाउंट इज मेंटेन, बट मैं लेक्चर 9-10 में समझा चुका था और आपको प्रैक्टिस के लिए दिया था। इसमें एसेट डिस्पोजल अकाउंट पूछा था तो हमने बना दिया। राइट डाउन वन क्वेश्चन, राइट डाउन वन थियरी क्वेश्चन, स्पीड अप। व्हाट डू यू मीन बाय diminishing balance method? What do you mean by diminishing balance method? Question mark. What are its merits, demerits and suitability? What are its merits,
demerits, and suitability. Write down. Under this method, the rate of depreciation is given in percentage. The rate of depreciation is given in percentage, and the depreciation is charged on the opening balance of the asset. And the depreciation is charged on the opening balance of the asset. That is on its book value every year. On its book value every year. Full stop. Thus, the amount of depreciation reduces gradually. Thus, the amount of depreciation reduces gradually, because it is charged on the diminishing value of the asset every year. Because it is charged on the diminishing value of the asset, every year. Full stop. This process goes on till the end of lifetime of an asset. This process goes on till the end of lifetime of an asset. Full stop. स्ट्रेट लाइन में तो वैल्यू जीरो हो जाती है, फिर हम डेप्रिसिएशन लगानी बंद कर देते हैं. डिमिनिशिंग बैलेंस में ये प्रोसीजर चलता ही रहता है जब तक आप एसेट बेचेंगे नहीं. फुल स्टॉप. Now, merits. 3 merits. Merits. Number 1. This method of depreciation is charged. This method of depreciation is charged according to the working efficiency of the asset. According to the working efficiency of the asset. जैसे हमने कार खरीदी, पहले 3 साल कार अच्छी काम करती है, ज़्यादा अच्छा काम करती है. आने वाले टाइम्स पे उस पर रिपेयर्स लगती है और उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है. पहले एफिशिएंसी ज़्यादा तो डेप्रिसिएशन ज़्यादा, आने वाले टाइम पे एफिशिएंसी कम तो डेप्रिसिएशन कम. 2. This method is duly recognized by the Income Tax Act. This method is duly recognized by Income Tax Department or Income Tax Act. Full stop. Third, in case of any fresh addition of fixed asset, there is no need to compute depreciation rate again. There is no need to compute depreciation rate again. Full stop. डिमिनिशिंग बैलेंस में एक बार रेट कंप्यूट कर लिया, अंडर रूट ऑफ ब्रैकेट 1 माइनस एस माइनस सी अंडर रूट रेज टू पावर n मल्टीप्लाई बाय 100. I repeat again,
1 minus under root of s minus c nth root n number of years multiply by 100. एक बार रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दिया, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन रेट निकाल दिया, वो ही चलता रहेगा एवरी ईयर. स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है? स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, जब हम बीच में कोई नया एसेट लेके आते हैं हम उसके लिए डेप्रिसिएशन रेट दोबारा निकालते हैं, क्योंकि उसके नंबर ऑफ ईयर्स चेंज होते हैं, उसका स्क्रैप वैल्यू चेंज होता है. ठीक है, प्रैक्टिकली हमने किया नहीं है, बट टेक्निकली दैट नीड्स टू बी अगेन कंप्यूटेड. सो दैट इज द मेरिट कि एक बार रेट निकाल दिया, हर एसेट पे, उस कैटेगरी के एसेट पे वही रेट चलता है. डीमेरिट, डीमेरिट, it is difficult to calculate depreciation as it is a time consuming process. It is difficult to compute depreciation. It is difficult to compute depreciation as it is a time consuming process. Full stop. Full stop. The value of an asset cannot be zero. Second point, the value of an asset cannot be zero, comma, thus the asset cannot completely written off from books. Thus the asset cannot be completely written off from books. जब तक आप एसेट को पूरी तरह से बेच नहीं देते, डिस्कार्ड नहीं कर देते, आपके पास बुक्स में वो एसेट रहेगा. टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस डाइस और दिस बोर्ड. अगर इसमें WDV मेथड लग रहा है और 10 इयर्स के बाद ये एसेट मैंने बेचा नहीं, रखा हुआ है, तो ये मेरी बुक्स में शो होता ही रहेगा और मुझे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी ही पड़ेगी. दैट इज द डीमेरिट टिल आई डिस्कार्ड इट प्रॉपरली. Third, it is difficult to determine the appropriate rate of depreciation. It is difficult to determine the appropriate rate of depreciation. पहले तो रेट कंप्यूट करना मुश्किल है, उसके बाद उसकी कैलकुलेशंस बहुत डिफिकल्ट हो जाती हैं. पॉइंट्स में कैलकुलेशन आती है WDV की 0.25, 0.75. These are the 3 demerits. अच्छा, आप ओरिजिनल कॉस्ट के मेरिट्स WDV के डीमेरिट्स में मेंशन कर सकते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट के डीमेरिट्स WDV के मेरिट्स में मेंशन कर सकते हैं. एंड द मेरिट्स ऑफ WDV वुड बी द डीमेरिट्स ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट एंड द डीमेरिट्स ऑफ WDV वुड बी द मेरिट्स ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट. लाइक ओरिजिनल कॉस्ट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स, डीमेरिट. Income tax department affiliates the WDV method, merit. I hope you got this. Next, suitability. WDV method कहाँ suitable है, कहाँ best suited रहता है? Number 1, it is suitable when the asset have, it is suitable when asset have long life. When assets have long life. यहां पे long life का क्या मतलब हो गया? Many years. तभी तो उसकी वैल्यू 0 पे नहीं पहुंचेगी, n number of years. 2, it is suitable for those assets that require, it is suitable for those assets that require more repairs and maintenance cost in the later years. It is suitable for those assets that require more repairs and maintenance cost in the later years. आने वाले सालों में अगर हम बहुत ज़्यादा रिपेयर मेंटेनेंस चार्ज करें तो ये मेथड सूटेबल है, क्योंकि रिपेयर करने का मतलब है 2-3 साल और काम करना चाहते हैं हम इस एसेट्स. थर्ड, it is suitable for the assets, it is suitable for the assets whose estimated life cannot be predicted with accuracy, whose estimated life
cannot be estimated with accuracy. Estimated with accuracy, full stop. So I'm giving you 1 minute. Question पढ़िए, what is WDV method, what are its merits, what are its demerits and when it is suitable. अच्छी तरह ये क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू कर लीजिए. एग्जाम में मेरिट्स पूछे जा सकते हैं, सिर्फ डीमेरिट्स पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यूज फॉर्म में आ सकता है या आ सकता है डिस्टिंग्विश बिटवीन बोथ द मेथड्स, वो तो हम पहले कर ही चुके हैं. टेक योर 1 minute, गो थ्रू द फुल आंसर, स्पीड अप. स्पीड है बच्चा, 15 more seconds. जी नाउ ये क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी करवाया है, क्वेश्चन नंबर इस लेक्चर में हमने किया है 16th. ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे लेक्चर नंबर 12 से पहले. अगला लेक्चर अटेंड करने से पहले ये क्वेश्चन आप दोबारा सॉल्व करेंगे. ऑल द कैलकुलेशन योर पार्ट, 30 मिनट्स लग जाते हैं ये क्वेश्चन करने में, बट आपको एसेट डिस्पोजल अकाउंट नहीं बनाना. ये क्वेश्चन आप दोबारा करेंगे जिसमें एसेट डिस्पोजल अकाउंट नहीं बनेगा, तो ये चीज हो जाएगी कैंसिल. एसेट डिस्पोजल नहीं बनेगा. यहां पे एसेट डिस्पोजल की जगह, यहां पे एसेट डिस्पोजल की जगह आ जाएगा टू मशीनरी अकाउंट. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्या आ जाएगा, टू मशीनरी अकाउंट, लाइक दिस. और मशीनरी अकाउंट में एसेट डिस्पोजल के 3 पार्ट हो जाएंगे, बाय provision for depreciation, by bank sale, by P&L loss. So ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके बोर्ड पर आ चुका है. क्वेश्चन 16 यू विल डू योरसेल्फ. उसमें एसेट डिस्पोजल नहीं बनाना है तो आप बनाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड मशीनरी अकाउंट, एंड दिस इज योर आंसर. नो एसेट डिस्पोजल. इन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन विल हैव मशीनरी लाइक दिस, एंड इन मशीनरी वी हैव 3 parts, not asset disposal but provision, sale and P&L loss. This is our lecture 11. We have 2 more lectures and our chapter will be done. 2 lectures और हैं, lecture 12 and lecture 13, और जिससे हमारा ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा. बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते.